and Noreen, you can leave. मैं इसको पेज पे शेयर नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि इसे प्राइवेट ग्रुप। नहीं, I'm going to go live on the page. So page से you can share it, and then I'm also going to share it from the page to my group. Okay, okay, fine. So there is Scary Yummy का फेस पेज ग्रुप भी है। ये पेज भी है। So why this Scary Yummy? मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ये Scary Yummy, like why this Scary Yummy, ये क्या है? भी आपको बताती हूँ। एक सेकंड मैं बस लाइव कर दूँ। So you can share it from our page to your page. Okay, fine. And we're live. Assalamualaikum everybody. This is the original Scary Yummy. And I'm here with Mudassir Ali, who a lot of you know because he's a very renowned nutritionist. And आज का हमारा topic is really important for, I think, every woman out there because it's about वो stubborn areas जहाँ से fat कभी नहीं जाता और जहाँ पर बस like कुछ भी हो जाए. I think especially after we become ammies, so there are some areas that you like, oh my god, I don't know if this way, like, you know, everybody has them. Everybody has those like killer areas that you like, ye kab sahi honge, you know, when will we ever have thin legs or toned legs or like whatever your like bellies kuch logon ki hoti hain, difficult areas, whatever your area is. But that's so, thank you so much, Mudassir. I've heard a lot about legs or toned legs. No problem. Yes, thank you so much, Mudassir, for joining us on Scary Yummy. You're talking to a big population of women. So it's great to have you with us. And tell us a little bit about, let's start by you telling us a little bit about yourself. Basically, I'm fitness nutritionist. It's been almost 10 years. I've been to like working in this industry. I am running my fitness studio in DHA Phase 6. Plus, I'm taking appointments in like Umar Hospital as a consultant. I'm taking appointments in like Festabad as well in DHA. Plus, we have an online coaching program. We have 1,000 of clients. Plus we have a virtual team. We coach them in terms of changing their eating habits. You know, people want to lose weight. They have like, especially females, like maybe 90% client, they're all females. Like I counsel them in terms of managing their diets, their lifestyle, their eating habits, you know. और हम बहुत ज़्यादा struggle कर रहे होते हैं weight loss में. Eating disorder के cases होते हैं, you know. बॉडी शेमिंग के केसेस होते हैं, देन बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि फीमेल के हार्मोनल इश्यूज होते हैं. So we handle them with like different diet strategies and different habit based program. It's one of unique in Pakistan. इसमें हम clients को without giving any, you know, supplement, without fat burner, we change their basic lifestyle, you know, management skill. We give them and teach them those skills जो कि वो अपनी lifestyle को सीख जाते हैं और सारी लाइफ उसको प्रॉपर्ली अडॉप्ट करते हैं. एंड दे रियल फूड, हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि यू नीड अ डाइट, यू नीड अ क्विक फिक्स, और आप उसको वो मिल जाए और आप उसको फॉलो करें, आपको ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता. वी नीड अ सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लान जो कि हम फॉलो करें और हम उसको उसके ट्रांसफॉर्मेशन उसके बाद कर पाए. सो यस, alhamdulillah, we have tons of stories mashallah on my page, and I'm running my like social media platform as well, and a lot of people know me. और जो नहीं जानते तो आज उनके कुछ questions हैं, उनको हम एड्रेस करेंगे. So आप इस फील्ड में कैसे आए? Like, did you go through a fitness journey yourself? Did you feel कि there was a huge need? Like, आपको कैसे, आपका क्या interest पैदा हुआ in fitness? Very interesting question. जो मेरा इस फील्ड में आने का बेसिक जो पीछे स्टोरी थी, I've been to all the gyms, you know, back in 2011, you know.
2011 I've been doing like एक्सरसाइज हार्डकोर वर्कआउट कर रहा था और मेरी हेल्थ जो है ना, अपनी हेल्थ वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी. आई वाज लाइक सफरिंग अ लॉट थ्रू, काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज थे, स्टमक बहुत अपसेट था, और आई वाज लाइक फाइंडिंग, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास मैं गया और मुझे कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि यार कौन मेरी हेल्प कर सके, मुझे ये नहीं मिल रहा था कि कौन एक बंदा है जो कि मुझे प्रॉपर डील और प्रॉपर गाइड कर सके. मैं डिफरेंट डॉक्टर्स के पास गया, हर एक के पास जाता था, दे वर लाइक ये खा लो, ये मेडिकेशन ले लो, ये ऐसा खा लो, बट देयर वाज नो जो कि प्रॉपर एक डाइट के बारे में आप गाइड कर सके. आपकी स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं है, आपकी एक्सरसाइज ठीक नहीं है, आपकी फूड इंटॉलरेंस है, ये सारी चीजें मुझे नहीं पता थी और मुझे प्रॉपर गाइड भी नहीं मिल रही थी. और प्लस हमारे यहाँ जो देसी कॉन्सेप्ट है, आई बिन, मैं एक देसी फैमिली से हूँ. अब आई नो कि बहुत सारे हमारे ज्यादातर लोग देसी फैमिली से, पाकिस्तान से. सो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि दूध तो डेली पीना है, लस्सी भी पीनी है, पराठे भी खाने हैं, उसके साथ साथ फिर हमें अच्छा वॉक एक्सरसाइज, ठीक है, अच्छा वॉक कर लो, इट्स फाइन. फिर उसके साथ साथ अच्छा यार, बहुत सारी ऐसी जो हमारे मिथ्स हैं कि रात टाइम जो है वो खाना नहीं खाना या मॉर्निंग में ही खाना है, ये सारी वो चीजें थी जो मेरे पास क्लैरिटी नहीं थी. सो दैट वाज द मेन पॉइंट जो कि मुझे इस फील्ड में आने का चांस मिला कि अब मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा, देन आई गॉट माय सर्टिफिकेशंस, फिर मुझे आइडिया हुआ कि नहीं यार, एक्चुअल जो हेल्थ है वो डाइट के बगैर रियल फूड से इम्प्रूव हो सकती है. लाइक फूड इज अ मेडिकेशन. अभी राइट नाउ आप देखते हो इंटरनेशनली भी जो दुनिया है, वो जितनी भी इंडस्ट्री है, हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री, सब एक टेली मेडिकेशन के ऊपर जा रही है, फंक्शनल मेडिकेशन के ऊपर जा रही है कि फूड जो है वो आपकी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री चेंज कर सकता है. और यस, बाय ईटिंग फूड यू कैन चेंज योर सेल्फ, योर मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ, आप सबको कैटर कर सकते हैं. तो दैट वाज माय मोटिव था इस इंडस्ट्री में आने का, कि पहले अपनी हेल्थ को एड्रेस किया जाए और फिर उन लोगों की मदद की जाए जो कि लोग हेल्प आउट चाह रहे होते हैं लोगों से, लेकिन उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल रही होती कि यार वो ट्रैक लाइन, वो स्टेप्स वो क्या है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, वो सारे प्रॉपर उनको नहीं मिल पा रहे होते. So Mudassir, like औरतें, since this is obviously a women's group and आपकी भी 90% clientele is women. So one question जो हम लोग बहुत discuss करते हैं इसके एरिया में is कि हम लोग अक्सर what are the mistakes we're making in terms of our diet? जो आपने like बहुत सी female clients में देखा, what mistakes are we making जो हमारे like body के लिए are harmful and हमारा ख्याल है हम अच्छा कर रहे हैं but actually we not. ये यहाँ पे ना बहुत सारे कुछ क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें पता है कि हमें हेल्दी खाना है और हमें पता है कि हम हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन बट वी आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, वी आर नॉट लूजिंग इंचीज फैट, और हमारी बॉडी चेंज नहीं हो रही. दिस इज वेरी कॉमन एक जो इश्यूज होता है. तो उसमें उनको मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि इफ यू आर फॉलोइंग एनी टाइप ऑफ डाइट, इट कुड बी योर लाइक फादर की डाइट हो सकती है, चचा की, नाना की, योर डाइट, गूगल की डाइट, और किसी न्यूट्रिशनिस्ट की डाइट, और मेरी डाइट, किसी की भी अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको एक उसके विदाउट पर्पसफुली किसी चीज को फॉलो करना, या कि बगैर किसी चीज को आप फॉलो किए जा रहे हो क्योंकि बस किसी ने मुझे प्लान दे दिया, लेकिन जब तक उसके आउटकम नहीं होंगे, उसका एक प्रॉपर आउटकम नहीं, उससे आपकी फिजिकल हेल्थ बेहतर नहीं हो रही, उससे आपकी इमोशनल हेल्थ नहीं बेहतर हो रही, आपकी स्लीप बेहतर नहीं हो रही, आपका फैट लॉस नहीं हो रहा, तो वो जो डाइट आप जो भी फॉलो कर रहे हैं वो एक हेल्दी डाइट नहीं है, वो एक प्रॉपर डाइट नहीं है. हाँ, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी डाइट से मिसिंग होते हैं, वो सबसे पहले उसके अंदर फैक्टर जो मिसिंग होता है कि उस डाइट जो है ना, हम बहुत डेफिशिएंसी हमारी क्रिएट करती है. लाइक हम 1500 कैलोरीज अगर हम ले रहे हैं तो वो 1000 पे चले जाते हैं, 1000 लेनी होती है तो हम 500 पे चले जाते हैं. हम उस डाइट को बहुत, मतलब सडनली वी लाइक स्टार्ट रिमूविंग लाइक फ्रूटी, चावल, कार्ब्स, उसकी वजह से स्पेशली फीमेल्स, ये जितनी भी फीमेल्स हैं, मैं उनको एड्रेस करना चाहूंगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जब हम फीमेल उसको रिमूव करती हैं अपनी डाइट से, तो 90% चांसेस होते हैं कि उनके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, वो क्रैंकी होती हैं, और उनकी बॉडी जो है ना वो होल्ड ऑन कर लेती है, वो कह लेती है कि अब हमारी बॉडी के फंक्शंस प्रॉपर काम नहीं करते. तो नंबर वन थिंग, cutting your carbs all the way. You don't need to cut your carbs all the way. आपको उनको step by step remove करना है.
राइट। आप उनको पहले हेल्दी कार्ब्स पे जाना है अपनी बॉडी, जब हम एकदम उसको कट कर देते हैं उससे हमारी डाइट सबसे पहले खराब हो जाती है। देयर वाज ए क्लाइंट, यू नो, मेरे पास आई, उसका 97 केजीज वेट था। शी वाज लाइक मुदस्सिर मुझे ना वेट कम करना है, मैंने उसको कुछ प्लान दिए, वो वर्कआउट करने के लिए जा रही थी, मैंने कहा 45 मिनट टू 60 मिनट आपने ना वॉक करनी है प्लेन। नेक्स्ट मंथ आई, उसका वेट 3 केजीज बढ़ा हुआ था, एंड शी वाज लाइक मुदस्सिर ये क्या, मैंने तुम्हें पे किया हुआ तो मेरा वेट बढ़ा हुआ है। मैंने कहा प्लान फॉलो किया, यस मैंने ये भी फॉलो किया। मैंने जब एक्सरसाइज या वॉक की बात की, मैंने कितनी देर फॉलो की, कहती आई वाज डूइंग लाइक 3 आवर्स वर्कआउट। मैंने कहा क्यों, तो कहती यार वो अगले 2 महीने के बाद फैमिली में शादी थी, तो मैंने सोचा ज्यादा मेहनत करती हूँ तो मेरी प्रोग्रेस जल्दी होगी, यू नो। हुआ ये कि उसने जब वर्कआउट ज्यादा किया, उसकी बॉडी स्ट्रेस में गई और उसके हार्मोन इम्बैलेंस हुआ, उसका वेट भी गेन हो गया। जो वो खा रही थी उसको वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, और उसका ऑपोजिट रिजल्ट आया। तो मैंने उसे बोला हम ये समझते हैं अनफॉर्चुनेटली कि हमारी बॉडीज हमारे कंट्रोल में है, बाय डूइंग hardcore diet, by doing like extra workout, by doing so many like crash diets, हम समझते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम मेहनत नहीं कर रहे होते, हम बगैर किसी डायरेक्शन के कोई मेहनत कर रहे होते। एक अगर आप दरख्त को काटो और आप एक नीडल से उसको काटो तो आपको पता नहीं कितना, एक महीना लग जाएगा। लेकिन इफ यू हैव प्रॉपर राइट डायरेक्शन, अगर आपके पास उसका आला हो काटने का, तो आप उसको 5 मिनट में काट सकते हो। सो यू नीड डायरेक्शन प्रॉपर। अगर डाइट में आपने जाना है तो उसको प्रॉपर स्टेप्स हैं, हम वो प्रॉपर स्टेप्स 1 2 3 नहीं फॉलो करते, और हम सोचते हैं कि बाय एक्स्ट्रा वर्कआउट, डबल वर्कआउट या डबल कैलोरीज अगर कट करेंगे तो शायद हमें बहुत जल्दी फर्क पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वी नीड टू मेक स्मॉलर स्टेप्स, इजी स्टेप्स। और अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम समझते हैं कि हमें डाइट करना है तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में जाना है, कोई बहुत हार्डकोर डाइट करनी पड़ेगी हमें, वो ऐसा ट्रिकी प्लान चाहिए, ऐसी ट्रिकी एक्सरसाइज होगी तो हमारा वेट कम होगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि बहुत सिंपली एक्शन से मिल जाती है, लेकिन उसके लिए वो राइट एक्शंस, राइट स्टेप्स, और विद द टाइम अगर हम उसको एडअप करें और सस्टेनेबल हो, स्टेप बाय स्टेप, बजाय से कि आप बहुत ज्यादा स्टेप्स इकट्ठे लेना शुरू कर दें। अच्छा, we have a lot of questions, so let's start. um, पहला क्वेश्चन है जी जैनब खान का, what can a low blood pressure patient do for diet and workout? अच्छा, जितने भी इफ यू आर सफरिंग एनी हेल्थ डिजीज, ब्लड प्रेशर है, कार्डियो डिजीज है, किडनी डिजीज है, सबसे पहले कोशिश करें कि किसी भी क्लिनिकल डाइटिशियंस के पास जाएं, सबसे नंबर 1 किसी डॉक्टर के पास जाएं। जब तक वो आपकी मेडिकेशन उसको ठीक ना करें तब तक अपनी डाइट ना ठीक करें, क्योंकि जितने भी डिजीज या किडनी या किसी ब्लड प्रेशर को सफर करें उसमें अपना सॉल्ट इनटेक आपने बेहतर करना है, और अपनी डाइट के अंदर अगेन there are two types. One is अगर आपको प्राइमरी ब्लड प्रेशर है, लाइक पीपल हु आर सफरिंग, जो कि 10th में से हर 8वां पेशेंट जो है ना सफर कर रहा होता है, इट्स वेरी कॉमन। तो आपको अपनी मेडिकेशन के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल डाइट के अंदर सॉल्ट का इंटेक बेहतर करना पड़ेगा। जो आप बाहर से खाना खाते हैं, प्रोसेस्ड आइटम्स हैं, बर्गर्स हैं, जंक फूड है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं अपनी डाइट के अंदर आ रहे हैं उसको कट करना पड़ेगा, एंड यू नीड टू ऐड मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट। Okay, perfect. The next question is, अच्छा, एक आप जब हमें बता रहे थे about like mistakes that women make, so I think one very common mistake that women make is कि वो नाश्ता skip कर देती हैं। अगर आपने को बिकॉज आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का लाइक दौर है, एंड दैट्स उसके काफी ज्यादा हेल्थ इफेक्ट्स हैं, तो ये एक्चुअली टू प्रॉन्ग क्वेश्चन है। एक तो आपका क्या ओपिनियन है अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग, एंड अगर किसी ने करनी है तो क्या नाश्ता स्किप करना चाहिए या डिनर, बिकॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप मैक्सिमम तो 2 मील्स ले सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जब हम ऑलरेडी कर रहे होते हैं, जितने भी वो लोग जो ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं वो ऑलरेडी इंटरमिटेंट फास्टिंग ही कर रहे होते हैं। मतलब कैसे, आप जब रात को सो गए, लाइक यू आर लाइक स्लीपिंग अराउंड रात को 11 12 1 बजे, और आपने ब्रेकफास्ट स्किप किया, और अगर आपने लंच 2 3 बजे जाके किया, तो ऑलमोस्ट आपका 12 आवर्स का 10 आवर्स का यू आर लाइक फास्टिंग राइट नाउ। सो अगर पर्पसफुली यू ट्राइंग टू डू फास्ट, तो उसमें
स्पेशली देयर आर टू कैटेगरीज, मैं इसको बता देता हूँ मेल्स के लिए। और कंपैरेटिव देयर इज अ स्टडी जब मेल और फीमेल पे ये स्टडी की गई कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, और की जेंडर बेस्ड स्टडीज की गई, तो मेल्स को कंपैरेटिवली ज्यादा बेनिफिट थे इंटरमिटेंट फास्टिंग, राइट। देन नंबर 2, फीमेल्स वो वाली जो कि जिनका लाइफस्टाइल कंपैरेटिवली, जिनकी लाइफ की स्ट्रेसेस बहुत कम है, जिनके पास कुछ करने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं, प्रोफेशनल्स नहीं है, लाइक the girls, the women, बच्चे नहीं है like जिनके, बिकॉज जिनके बच्चे हैं वो तो बहुत बिजी हैं। बहुत बिजी हैं, और बच्चों के साथ वो हस्बैंड इन लॉज बच्चों को, एंड यू अंडरस्टैंड के बच्चों के साथ इन लॉज फैमिली को और वर्किंग वुमेन तीनों जगह पे जब काम कर रही होती है, लॉट ऑफ स्ट्रेस। और वो जब इंटरमिटेंट फास्टिंग में करती है जाती है, तो बॉडी जो है वो उसका रिवर्स इफेक्ट देती है। यस, देयर आर सो मेनी पीपल जिनको उसके बहुत ज्यादा पॉजिटिव बेनिफिट्स मिले हैं और मिलते भी हैं, लेकिन विद द प्रॉपर प्रोसीजर प्रोटोकॉल अगर आप फॉलो करें, उसके अंदर अगर आपका बिजी स्केड्यूल है तो 8 to 10 आवर्स का फास्ट इज वेरी गुड। अदरवाइज 16 आवर्स का जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है वो ज्यादा रिकमेंड की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या है। नहीं, आप बेसिकली कह रहे हैं कि अगर इफ अ वुमन इज अ बिजी वुमन, शी इज अ मदर एंड शी इज अ प्रोफेशनल, तो उसे नहीं करनी चाहिए कि उसे करनी चाहिए? नहीं, आई डोंट सजेस्ट कि उनको करनी नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि उसको फूड चाहिए, उसको रेस्ट चाहिए, और इंटरमिटेंट फास्टिंग में बॉडी जो है वो विदाउट फूड चल रही होती है, स्पेशली फीमेल। अगर मेल है तो इट्स फाइन, मेल कर सकते हैं, बट आई डोंट सजेस्ट फीमेल जो कि ये करें, और वो प्रोफेशनल भी हो, बिजी भी हो, राइट। ओके, ठीक है। एंड आप ये कह रहे हैं कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसमें द 16 to 18 वाला इज बेटर? 16 to 18, 18 तो बहुत ज्यादा है। सॉरी, 12 16 to 8, 16, मतलब 16 yes। आवर्स आप फास्ट करो, 8 आवर्स आपका। ठीक है। अच्छा जी, एक साइमा बार इदरीस का क्वेश्चन इज हाउ मच शुगर कैन वी यूज अ डे which is not converted into fat? like कोई अमाउंट है कि अच्छा अगर आप लाइक चाय में चीनी ले लो तो वो ठीक है, या सुबह चीनी ले लो तो ठीक है, या चीनी में कोई अमाउंट है which is okay? चीनी में नॉर्मली हमारा 2 से 3 टेबल स्पून में इज फाइन। अगर आपको कोई डायबिटीज नहीं है, अगर आपको कोई हार्मोन इम्बैलेंस नहीं है, और आपकी डाइट बहुत हेल्दी है, देन इट्स फाइन। वी नीड शुगर, राइट, बट वी डोंट नीड ए प्रोसेस शुगर, वी नीड ए शुगर। ग्लूकोज हमें चाहिए होता है। हमारा ब्रेन ऑलमोस्ट 150 ग्राम जो है ना ग्लूकोज ब्रेन को एक्टिव करने के लिए चाहिए होती है, तो वी नीड एनर्जी। हमारी बॉडी का हर मसल, हर चीज जो है ना ग्लूकोज के ऊपर एनर्जी के तौर पे काम करती है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो वी नीड टू कट आउट व्हाइट शुगर, हम उसको बिल्कुल नहीं लेना। हाँ, उसका ऑल्टरनेटिव है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं, देखो हनी है, स्टीविया है, कोकोनट शुगर है, लेकिन वो भी वेरी 1 to 2 टेबल स्पून। लेकिन अगर आप रोटी, राइस, मैंगोज, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो आपको व्हाइट शुगर को फिर नहीं लेना। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी बाकी ओवरऑल डाइट की रूटीन क्या है, उसके अंदर शुगर कितनी आ रही है। अगर वो आप बिल्कुल नहीं ले रहे, बड़ी मिनिमाइज ले रहे हैं, तो आप इमेजिन करें कि एक जो आइसक्रीम का स्कूप होता है, उसके अंदर ऑलमोस्ट 20 टेबल स्पून ऑफ शुगर के होता नहीं, in one scoop? है। यस। और एक Oh कोक का my जो कैन होता है, God, you guys, आइसक्रीम बंद कर दो जिंदगी भर के लिए। और एक कोक का या सॉफ्ट ड्रिंक का जो कैन होता है, उसके अंदर 8 टेबल स्पून ऑफ शुगर होते अच्छा, हैं। क्योंकि It's आप इसकी बात कर रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स के, तो आई कैन आस्क यू अनदर क्वेश्चन जो आया हुआ है। लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आई डोंट नो कितनों के जवाब दे पाएंगे। कि जो डाइट कोक है उसको लोग क्यों कहते हैं कि वो बुरी है? अच्छा, डाइट को इसलिए बुरी कहती है। मैं इससे पहले इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए, जितने भी फूड लेबल्स हैं, लाइक यहाँ ये क्वेश्चन बेसिकली एड्रेस होता है फूड लेबल्स के ऊपर, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर लिखा होता है 0 शुगर, 0 कैलोरी, बट दे हैव कैलोरीज, दे हैव शुगर, और वो मीठी भी होती है। उसकी रीजन ये है कि लेट्स मैं आई वाज टीचिंग एट लम्स, वहाँ पे हमारा एक लेक्चर है, इसको फूड लेबलिंग बोलते हैं। ये अपने बच्चों को, अपने सबको एजुकेट करना चाहिए कि आप फूड लेबल्स को कैसे पढ़ें। अच्छा, फूड लेबल की एक साइंस है, वो साइंस ये है, जितनी भी इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं, एफडीए की तरफ से उनको अलाउ होता है, जो भी फूड लेबल्स के ऊपर लिख रहे हैं कि इतने % ग्राम शुगर है, इतने ग्राम प्रोटीन है, उसके अंदर 15% to 25% एफडीए की तरफ से अलाउ होता है मार्जिन ऑफ एरर, राइट। इसका मतलब है कि जो आप कह रहे हैं उसमें से 15 to 20% आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब ये एक लॉ है,
बाय FDA, ठीक है, 15% एटलीस्ट एवरेज उनकी तरफ से अलाउ है। कंपनीज क्या करती हैं, जितनी भी रेगुलेशन करती हैं जब वो फूड प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके अंदर 15 to 20% खुद एडअप करती है मार्जिन ऑफ एरर। तो टोटल हमारा बन गया अराउंड 25 to 35%। इसका मतलब इफ देर, अब लेबल के ऊपर लिखा हुआ है कि 0 कैलोरीज 0 शुगर, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर 20 to 35% चांसेस हैं कि स्टिल शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और दो स्वीटनर्स एडेड हैं जो कि लिखे नहीं हुए। सो दैट्स द मेन रीजन कि वो अगर डाइट सोडा है, कुछ भी है, उसके अंदर फिर भी 20-30% कैलोरीज एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, इसलिए रिकमेंड नहीं किया। Okay. अच्छा जी, हाउ टू कंट्रोल क्रेविंग्स फॉर जंक फूड। ऑफ ये एक बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज मतलब पूरा दिन अम्मियाँ अच्छा खाएंगी, सैलेड्स खाएंगी, ग्रीन्स खाएंगी, ब्रोकली, एंड रात को बच्चे सोएंगी एंड दे विल बी लाइक हाय जिंगर, हाय मैकडॉनल्ड्स। ये क्यों होती हैं क्रेविंग्स, और इनको हम कैसे मार डालें? अच्छा, अब कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आई थी, तो वो सारा दिन जो है ना बच्चों के साथ, बच्चों का बचा हुआ खा लिया। एक मदर की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, मदर कैसी होती है, वो क्या करती है, सुबह बच्चों के लिए उठती है, नाश्ता बनाती है, नमाज वगैरह पढ़ती है, सो जाती है, फिर हस्बैंड उठता है, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाती है, देन वो फिर सो जाती है, फिर चाय पी ली, दोपहर में कुछ लाइट सा खा लिया, और रात के टाइम जब बच्चे सो जाते हैं तो वो फिर क्या करती है, वो उसका मी टाइम शुरू होता है, उस टाइम उसका दिल करता है फिर मैं कुछ खाऊं, फिर वो कुछ ऑर्डर आते हैं, कुछ बाइट से मंगवाती है। एक तो नंबर 1 रीजन ये है। नंबर 2, क्रेविंग्स हमें जंक फूड की इसलिए होती है क्योंकि हमारी एक चेन ब्रेक होती है। उस चेन को कहते हैं कि हमारा ब्रेकफास्ट लंच टाइम पे नहीं होता, हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं होती। हम क्या करते हैं, हम चाय के ऊपर चल रहे होते हैं, हम फ्रूट्स के ऊपर चल रहे होते हैं, हम ब्रेड और टी के ऊपर चल रहे होते हैं, और प्रॉपर वो जो न्यूट्रिशनली रिच फूड है, जो कि मैक्रोज हमारे डाइट के अंदर पूरे नहीं हो रहे होते, तो हम वो नहीं खाते, और रात को एक बिंज ईटिंग की एपिसोड होती है। फिर उस टाइम पे हमें जो सारे दिन का हमने स्टार्व किया होता है वो खाते हैं। कुछ लोगों के पास 2 या 3 दिन के बाद ये एपिसोड आती है, वो 2 दिन बहुत ज्यादा अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं, उनको लगता है कि हम डाइट कर रहे हैं, और वो कंट्रोल करते हैं। तीसरे दिन के बाद यार मंगवा लो कुछ भी, कहीं पे भी कंट्रोल, फिर केक भी Yes. पूरा चला जाता और फिर है। अच्छा, मदर्स को तो मुझे लगता है, आई डोंट नो अगर इसमें कोई सेंस है कि नहीं, पर मुझे लगता है कि हम लोग या तो बच्चों को देख देख के हम भी बच्चे बन जाते हैं। मैंने कभी जिंदगी में, आई वाज नेवर फॉन्ड ऑफ मैकडॉनल्ड्स एंड KFC। नाउ एज अ मॉम, मेरी क्रेविंग्स ही वो वाली होती हैं, या चॉकलेट आइसक्रीम्स एंड अच्छा, ये भी एक बहुत इशू है, रात को लेट मदर्स को कैंडी की क्रेविंग्स होंगी, कि जो बच्चों हाँ, की इसकी छोटी बैग्स में नहीं होती चीजें। उसकी वजह ये है कि क्रेविंग्स को कम करने के लिए अगर टू स्ट्रेटेजीज, ठीक है, पहले मैं टाइप्स बता देता हूँ। लेकिन अगर आपका ब्रेकफास्ट, यहाँ पे आपको क्वेश्चन था कि द गर्ल्स, जो भी वुमेन जो है अपना ब्रेकफास्ट स्किप करती हैं, अगर आपके ब्रेकफास्ट में प्रोटीन ज्यादा है और लंच में भी प्रोटीन ज्यादा है, तो 90% चांस है कि आपकी रात की क्रेविंग जो है वो खत्म हो जाएगी। मैंने इसे प्रोटीन, उसका मतलब है कि ब्रेकफास्ट में अगर आप 2 एग बॉयल ले रहे हैं, आप पीनट बटर ले रहे हैं, लंच में आप मीट, चिकन, मटन, बीफ, मूसली, कुछ इस तरह की डाइट के अंदर ज्यादा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो उसकी वजह से ये होगा कि आपकी बॉडी जो है ना, वो आपको एक फुलनेस की फीलिंग आती है। सो ट्राई टू ऐड मोर प्रोटीन इन योर ब्रेकफास्ट एंड इन योर लंच टाइम। आपकी रात की क्रेविंग उससे कम हो जाएगी। दैट्स अ गुड टिप, या ओके। अच्छा जी, एक अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स आल्सो वांट टू लूज वेट, बिकॉज उनका इतना वेट चढ़ गया होता है इन प्रेगनेंसी, सो दे ऑल वांट टू लूज वेट। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग में हमें कहा जाता है कि भाई खूब खाओ, और इतना खाओ कि आप यू कैन आल्सो फीड द चाइल्ड। सो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए क्या एक अच्छी डाइट है जिससे वो वो ऑब्वियसली उनका मिल्क फ्लो भी ना अफेक्ट हो, येट वो वेट भी लूज कर ले? अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग पे जितनी भी मदद होती है और प्रेगनेंसी से गुजरती है, तो सबसे पहले एक चीज याद रखें कि बच्चे के लिए अब उसने अपनी जब फीड लेनी है थ्रू मदर, तो जो मदर खाएगी, ठीक है, उसकी बॉडी वही न्यूट्रिएंट प्रोसेस करके उसको मिल्क में कन्वर्ट करेगी। और यस, अगर आप नहीं खाएंगी, अगर आप कुछ बहुत कम डाइट पे होंगी, आपने बहुत सारे लोगों को, सॉरी, फीमेल्स को देखा होगा, वो मदर जो मदर फीड पे होती हैं, उनको हमेशा लो ब्लड प्रेशर का इशू होता है, चक्कर आ रहे होते हैं, वो सारा दिन उनको लग रहा होता है वो वीक फील कर रही है। उसकी वजह ये होती है वो डाइट प्रॉपर न्यूट्रिशनली वो जो चाहिए वो नहीं ले रही होती,
कम खा रही होती हैं और बेबी को मिल्क चाहिए होता है। आपने देखा होगा, आप एक चीज बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आप देता हूँ कि अगर आपका बेबी रात को सो नहीं रहा तो इसका मतलब है कि बहुत सारे चांसेस है कि आपकी डाइट में, मदर की डाइट के अंदर कैफीन आ रही है, सॉफ्ट ड्रिंक, चाय, कॉफी की शक्ल में। अगर उसमें कैफीन अगर आप ज्यादा ले रही हैं तो वो बेबी को मिल्क में जाएगी और फिर रात को उसकी नींद डिस्टर्ब होगी। यू नो, वट एवर यू आर ईटिंग, बच्चे को मिल्क के अंदर वो जाएगी। सो यस, डाइट के अंदर मिल्क को, मदर को ये चीज पे ख्याल रखना है कि अपनी डाइट को, मैक्रोज अपने ठीक रखें, ठीक है। बहुत ज्यादा ठंडा या गर्म से अवॉइड करें, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्म फूड या ठंडे फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, जंक फूड, उनसे तो बिल्कुल देसी फूड की तरफ आए। एंटी इन्फ्लेमेटरी जो फूड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत सारे हमारे फ्रूट्स हैं, लेट्स सपोज जितनी भी बेरीज फैमिली है, रसबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरीज, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरीज, ये वाले वो वाले फ्रूट्स हैं What जो कि about रिच। jamun? Does jamun come in this category? जामुन भी आते हैं, दे आर वेरी, क्योंकि सीजनल फ्रूट है जामुन और मैंगोज, क्योंकि मैंगोज हमारे पास विटामिन B6 उसके अंदर होता है और उसके अंदर डिफरेंट कार्ब भी होते हैं, शुगर भी होती है, लेकिन मिनिमम क्वांटिटी में, हमने ज्यादा नहीं खाने। जामुन, सीजनल जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो हमारे पास हेल्दी होते हैं। पाइनएप्पल है, अनार है, एक केला है, ये सारे के सारे आपको हीलिंग में बहुत ज्यादा प्रोसेस करते हैं। और फीमेल को उस टाइम पे, अब बहुत ज्यादा खवातीन क्या करती हैं, वो जंक फूड खाना शुरू कर देती हैं कि कहा ये जाता है कि ज्यादा खाना है। अब ज्यादा खाने से ये मुराद नहीं है कि जो मर्जी खाना है, तो ज्यादा खाने से मुराद है कि आपने ज्यादा हेल्दी खाना है। तो आपकी डाइट के अंदर फ्रूट्स, मीठे की जगह फ्रूट्स मैक्सिमम इस्तेमाल करें, देसी घी, बटर, पीनट बटर, इनका इस्तेमाल ज्यादा करें, तो आपकी जो वो वीकनेस है वो भी नहीं होगी। अच्छा जी, बीनेश अहमद कह रही हैं कि वो आपसे एक पर्सनलाइज प्लान कैसे लें, और इसी से मिलता जुलता सवाल है जवेरिया का कि यू आर वेरी एक्सपेंसिव मिस्टर मुदस्सिर अली, एंड आप कोई ओके, इंस्टॉलमेंट प्लान भी नहीं ऑफर करते और आप इतने ज्यादा पैसे चार्ज करते हो, ये बहुत अनफेयर है। तो इसका कोई हल बताइए। यस, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने सही कहा। अच्छा, इन सब के लिए जो लोग ये समझते हैं एंड दे फील लाइक यार, माय प्लान्स, आई चार्ज यू अ लॉट, so my you need to follow my YouTube channel. I post daily videos, daily content, free tips, and अगर आप मेरे Facebook पेज पे जाएं तो they are like more stories जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने फ्री में लाइक अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की, उन्होंने 20-30 kg तक लूज किया विदाउट, उन्होंने आज तक मुझे कभी विजिट नहीं किया। कैसे? लाइक दे आर फॉलोइंग मी लाइक स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, और जो डेली टिप्स हो रहे होते हैं, अगर आप उनको विजिट करें, अगर आप उनको कंज्यूम करें, आप उनको डाइजेस्ट करें, उनको अप्लाई करें, यू विल गेट द रिजल्ट, नंबर वन। एंड नंबर टू, यस, द पीपल जो मुझे विजिट करते हैं, आई ओनली टेक वेरी लिमिटेड क्लाइंट्स, पेशेंट्स, और उनका जो मेरा सेशन होता है वो एटलीस्ट 1 घंटे का होता है, जिसकी वजह से आई कैन नॉट टेक लाइक सो मेनी पेशेंट डेली और मैं उनको चार्जेस कम करके ले लूँ। यस, हम उनको एक डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, अगर आपके ग्रुप में कुछ लोग हैं तो आई गिव देम ऑलमोस्ट 20-25% डिस्काउंट। जितने भी आपके मेंबर्स हैं, दे कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी, आई गिव देम डेफिनेटली डिस्काउंट। ये तो जवेरिया, आपका तो मसला यहाँ पर हल हो गया। बीनेश का ये क्वेश्चन था कि आपसे पर्सनलाइज प्लान कैसे लिया जाए, व्हाट इज द वे टू गेट द अपॉइंटमेंट फ्रॉम यू। नासिर, वी हैव, जो लोग पर्सनली विजिट करना चाह रहे हैं, दे कैन विजिट मी इन डीएचए और उमर हॉस्पिटल। आई डोंट टेक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स, आई जस्ट पर्सनली, जो क्लाइंट को, मुझे पेशेंट को मुझे पर्सनली विजिट करना पड़ता है। इवन फैसलाबाद में आई ऑफन विजिट, वहाँ पे भी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है। प्लस अगर आप लोग विजिट नहीं करना चाहते, यू फील लाइक हम लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, तो वी हैव ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम, जो कि हम 1 ईयर का कोचिंग प्रोग्राम ऑफर करते हैं, और उसमें 1 ईयर से हम नीचे नहीं लेते। इफ यू फील लाइक मुझे सर हमारी शादी है, 6 महीने के बाद मैंने 20 kg कम करना है, तो हमें साइन अप कर लो, हम नहीं लेते। आप शादी, क्योंकि लाइफ जो है 1 साल के अंदर, लाइफ की स्टेजेस हैं, हॉस्पिटल्स होना, सिकनेस, प्रॉब्लम, डेथ, ये एक लाइफ का पार्ट है। तो आपकी वेट लॉस जो जर्नी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, वो हम अपने क्लाइंट्स को 1 साल के ऊपर जर्नी के ऊपर लेके चलते हैं। सो दैट्स अवर ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम। यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी, अगर आपको डिटेल्स चाहिए, माय पेज, you can follow me on Mudassir Ali Fitness Pro at YouTube and Facebook. You can directly WhatsApp me there. ओके जी, माइशा खान का क्वेश्चन है कि घर पे क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए फॉर बेली फैट। अच्छा, बेली फैट के लिए देयर आर 2 स्ट्रेटजीज जो कि मैं उसको एड्रेस करना चाहूंगा, एक एक्सरसाइज पार्ट और एक डाइट पार्ट और एक रूटीन पार्ट।
आपकी डाइट पार्ट में, लेट्स स्टार्ट विद द डाइट कि डाइट में आपने क्या लेना है। डाइट में सबसे पहले आपने टमी फैट तब बढ़ रहा होता है जब आपको बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आपकी मील के अंदर बहुत, या स्ट्रेस आपको बहुत ज्यादा हो। तो डाइट के अंदर आपने प्रोटीन इंटेक ज्यादा करना है, उसके अंदर जितने भी आपने काम करना है ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में आप अपना प्रोटीन थोड़ा सा इंटेक बढ़ाएं। ये नहीं कि सिर्फ प्रोटीन डाइट पे चले जाएं, व्हाट आई एम सेइंग कि प्रोटीन इंटेक ज्यादा करें। कैसे? ब्रेकफास्ट में एग, बॉयल एग 2 से 3 आप ले सकते हैं, पीनट बटर ले सकते हैं साथ में। नंबर लंच के अंदर यू कैन ऐड चिकन मटन बीफ स्टेक की फॉर्म में, वन स्टेक साइज और 1.5 स्टेक साइज, अगर मेल है तो 2 स्टेक साइज के इक्वल। और डिनर में भी अपना मीट ऐड अप करें डिपेंडिंग अपॉन, मेक श्योर कि अगेन ब्रैकेट्स के अंदर कि अगर आप कोई यूरिक एसिड है, कोई हेल्थ इश्यूज हैं, तो फिर मीट बगैर किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के इतना ज्यादा नहीं आपने इस्तेमाल करना, राइट। दूसरा, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपने बहुत ज्यादा एब्स की एक्सरसाइज नहीं करनी, इसको हम बोलते हैं कि आपने स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स ऐड अप करनी है। स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक ये है कि आपका बेली पे जब फीमेल का, अगर फीमेल का आशा अगर फैट्स हो रहा है बेली पे, तो इसकी क्लैरिटी, इसकी ये इंफॉर्मेशन है, इंडिकेटर है कि फीमेल इस टाइम स्ट्रेस के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर, राइट। अब वो स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक आप वो एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा कम करे हो, लेकिन होता ये कि लोग जैसे ही एक्सरसाइज छोड़ते हैं, जिम छोड़ते हैं या टम्मी की एक्सरसाइज छोड़ते हैं, तो आपने देखा होगा टम्मी ज्यादा बाहर आ जाता है और हम सोचते हैं ये क्या हो रहा है। तो आपने उसके लिए जो मेन एक्सरसाइजेस हैं, प्लैंक्स हैं, क्रंचीज हैं, साइड रेजेस हैं, आप ये कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक लागू में अडॉप्ट करनी है। एक्सरसाइज अगर 5 दिन कर रहे हैं तो उसको 3 दिन पे ले आए। अगर एक्सरसाइज 5 दिन टम्मी की कर रहे हैं, अगर उससे सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो वॉक पे चले। और तीसरे नंबर पे अपनी रूटीन के अंदर स्लीप आपकी ठीक नहीं है, फूड प्रोसेस नहीं हो रहा आपकी बॉडी के अंदर, आप टमी की एक्सरसाइज भी करें, आप डाइट भी अच्छी फॉलो करें, फिर भी टमी फैट नहीं कम हो रहा, इसका मतलब है आपकी रूटीन जो है वो खराब है। रूटीन से मुराद आपकी स्लीप ठीक नहीं है। जब आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती, जितनी भी न्यूली मदर्स होती हैं, आपको पता है कि जब पहला 1 से 2 साल बच्चा जो है बताता है अपना कि वो सारी रात जब जागता है, तो मदर बेचारी क्या करती है, उसको सारा दिन वो थकी हुई फील करती है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो मसला ये है कि स्लीप आपकी जब ठीक नहीं होगी तो आपकी अच्छी डाइट और अच्छी एक्सरसाइज भी काम नहीं करेगी। तो इन तीनों चीजों को आपने बैलेंस करना। ओके, अच्छा जी, वी हैव एवरेज हेल्दी वेट लॉस एक हफ्ते में क्या होता है? शहाना अच्छा, सजा मैं क्वेश्चन, 1 हफ्ते में, हफ्ते में। अच्छा यहाँ पे मैं आपको वो 2 चीजें बताता हूँ जो कि एक्चुअल हेल्दी है, और एक हमें गूगल बताता है। गूगल तो हमें बताता है कि एटलीस्ट 1 से 2 kg पर वीक जो है कि हमारा वेट लॉस होना चाहिए, लाइक मंथ में 4 to 5 kg मुदसर, इतना तो ठीक है, गूगल हमें बता रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एक हेल्दी वेट लॉस है पर मंथ, वो आपका एटलीस्ट 1 kg है, राइट, बगैर किसी एक्सरसाइज के। 1 kg इन अ मंथ, अगर आप उसके कोई वॉक एक्सरसाइज करें या तो 1.52 पे जा सकते इन अ मंथ, तो जिन्होंने 30 केजी उतारना है वो 30 मंथ्स लगाएं। हैं। हाँ, ये इसे वेरी, यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि वो 30 मंथ्स इस वजह से लगा दे, जब हम क्यों डाइट का एक साइकिल इस्तेमाल करते हैं, जब हमारी बॉडी, हम ना एक गलत गोल को सेट कर लेते हैं। हमने गोल सेट किया कि दरअसल मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, लोग आते हैं, दरअसल एक 7 मंथ के अंदर मुझे 30 kg उतारना है। ओके फाइन, 1 मंथ आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एटलीस्ट 6-7 kg तो होना चाहिए ना पर मंथ के अंदर। ओके, वेरी गुड। अगर दुनिया में कोई ऐसा कैलकुलेटेड मेथड है, दुनिया में कोई ऐसा तरीकाकार है, तो सारे लोग वो क्यों नहीं फॉलो कर लेते? क्यों सारी खवातीन वो फॉलो करने के बाद क्यों वेट लॉस नहीं करती? आप सम टाइम आपको पता होगा फीमेल्स दे आर ट्राइंग टू लूज वेट, दे आर लाइक डूइंग डाइट, क्रैश डाइट, एक्सरसाइज, लेकिन वेट 1 kg भी नहीं कम हो रहा। सो आपकी बॉडी जो है वो डिसाइड करती है। वी हैव द बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल वेलबींग, हमारे अंदर सिस्टम चल रहे होते हैं। अगर हम उसको ट्रिक करने की कोशिश करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे। यस, 1 to 2 kg इज अ वेरी हेल्दी वेट लॉस इन अ मंथ, ठीक है, बट इन अ वीक 1 to 2 kg इज, दैट इज नॉट हेल्दी। दिस इज व्हाट एक्चुअल एविडेंस इज। ये मैं एक्चुअल बात कर रहा हूँ, गूगल की बात नहीं कर रहा ओके, बट 1 केजी मंथ तो बहुत कम है। हूँ। हाँ, वो तो कम है, लेकिन विद द वॉक ये 2 kg पे जा सकते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 5 5 kg भी कम किया, लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ
पीपल, क्लाइंट जिन्होंने एक महीने में 10-10 केजी भी कम किया, लेकिन उनकी रेशियो बहुत कम है। हम बात करें वो लोग जो एवरेज लाइक एक जब आप बड़ी पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो जो जो लोग ज्यादा तादाद में नहीं कम कर पाते, हम उनको भी इंक्लूड करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे देयर बॉडी टाइप्स जो कि अगर हम नेक्स्ट कभी मौका मिला तो वहाँ मेरी एक यूट्यूब पे वीडियो भी है, वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी बॉडी टाइप है जो लोग जल्दी वेट लॉस कर जाते हैं। देयर आर पीपल, बट वो 100 में से 10% लोग होते हैं। देयर आर। बट 2 kg तो बहुत कम है मुदस्सिर। ये तो बहुत कम है, बाकी बहुत कम है। मैं क्या करूं? अगर मेरे कंट्रोल में होता तो मैं तो जितनी भी नीचे कमेंट्स आते थे आ रहे हैं सबको कहता ये प्लान फॉलो करो, आपका 10 केजीज कम। वो सब ने मुझे दवाएं भी देनी थी और सबके पता नहीं कितने मसले हल हो जाने थे, राइट। अच्छा, ये कीटो से मिराक्युलस वेट लॉसेस होते हैं, मतलब कीटो यस से यस बिल्कुल यस। श्रिंक हो जाते हैं। कीटो के बारे में आपका क्या ख्याल है? माय पॉइंट ऑफ व्यू, कीटो इज अ वेरी गुड, ट्रेंडिंग है कीटो। अगेन इससे फैट इनटेक हमें बहुत ज्यादा लेना पड़ता है, और कीटो की जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा सा मैं छेड़ूंगा। लेकिन इन माय सजेशन, माय पर्सनल ओपिनियन, जो मैं क्लाइंट को कीटो सजेस्ट नहीं करता, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई अगेन स्ट्रेस नहीं है, आप प्रोफेशनल नहीं है, मदर नहीं है, और आपको मील्स डेली डिलीवर हो रहे हैं घर पे, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो यू नीड, आप कर सकते हैं कीटो, उसके अंदर कोई मसला नहीं, और वो आपको सूट भी करे, राइट। सो देयर आर फ्यू पीपल जो कि इस पैराडाइम में, इस सिचुएशन में पूरा उतरते हैं, लाइक उनकी स्ट्रेस नहीं है, उनकी जिम्मेदारियां नहीं है, और वो इसको हैप्पीली अफोर्ड भी कर सकते हैं या कीटो मील्स बना सकते हैं। लेकिन इस डाइट को प्रैक्टिकली लॉन्ग टर्म चलना सस्टेनेबल बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है। सो आई डोंट सजेस्ट कि इसको लॉन्ग टर्म में आप चलाएं। शॉर्ट टर्म में वेट लॉस के लिए इफेक्टिव है, और बहुत सारे लोगों ने लूज किया है और लोग लूज कर भी रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो लॉन्ग टर्म में गेन बैक हो जाता ओके, अच्छा जी, detox water, does that help with weight loss? है। अच्छा, डिटॉक्स की थोड़ी सी मैं आपको साइंस बता देता हूँ कि व्हेन वी टॉक अबाउट डिटॉक्स, तो डिटॉक्स जो है वाटर, अगर आप प्लेन वाटर पी लें, सिंपल जो प्लेन वाटर होता है, इट्स द बेस्ट डिटॉक्स, राइट। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सिंपल प्लेन वाटर पी लें 10 to 12 ग्लास डेली। यस, अगर आप उसके साथ साथ वेजिटेबल्स ऐड अप कर दें, उसको प्रॉपर डिटॉक्स बनाए, फाइबर ऐड अप कर दें, और वो आपको हेल्प कर रहा है, और बाकी डाइट अगर आपकी अच्छी है तो डिटॉक्स इज फाइन। लेकिन अगर आप अपनी रूटीन के अंदर वेट लॉस के लिए सिर्फ डिटॉक्स कर रहे हैं ऑल द टाइम, और आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, प्रॉपर कुछ नहीं खा रहे, तो आई डोंट सजेस्ट कि आपको डिटॉक्स लेना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट हेल्थी। ओके, अच्छा जी, ऑब्वियसली आप अभी हमें एक मतलब आई एम श्योर आप एक डाइट प्लान तो नहीं दे सकते, बिकॉज हर इंसान का डाइट प्लान अलग होता है, बट सम मदर्स आर सेइंग कि आप हमें कोई जनरल गाइडलाइंस दे सकती हैं कि क्या चीजें, आपने एक जैसे बताया है कि कार्ब्स बिल्कुल कम नहीं करनी, लाइक मिनिमम पे ले आए बट जीरो नहीं करनी, एंड सिमिलरली आपने कहा था कि वो प्रोटीन हैवी नाश्ता लें और प्रोटीन हैवी लंच। आर देयर एनी अदर टिप्स दैट यू कैन गिव अस? ओके, मैं सबको बताता हूँ कि सबसे पहले जो एक तो ब्रेकफास्ट ऐड अप करें लोग, राइट। और ब्रेकफास्ट क्या होगा, मैं आपको ना एक बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ, और ये उन सब लोगों को, इसको हम बोलते हैं बिग फाइव। लाइक आप जब सुबह उठें, so take the breakfast, remember the big five, you have like आपके हाथ की 5 उंगलियां, so make sure कि आपके ब्रेकफास्ट में 5 चीजें, राइट। आप जब सुबह उठें, ब्रेकफास्ट में यू कैन चूज लाइक स्लाइस में से काब काब का एक पोर्शन चूज कर सकते हैं, उसके अंदर ब्रेड है। आप ब्रेड कौन से वाला होगा, होल ग्रेन है, मल्टी ग्रेन है, ब्राउन है, वाइट है, प्रोटीन है, यू नो देयर डिफरेंट मार्केट में अवेलेबल है। तो ऑलवेज चूज होल ग्रेन ब्राउन ब्रेड, मल्टी ग्रेन ब्रेड, जो कि आपको अवेलेबल है, राइट। नंबर 1 स्लाइस। नंबर 2, चूज एग्स, प्रोटीन सोर्स। प्रोटीन में आप एग ले सकते हैं, आप ऑमलेट, फ्राइड, सैम्बल किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, ये आप डेली ब्रेकफास्ट करें, ठीक है। एंड नंबर 3, चूज नट साथ में, जिसके अंदर वॉलनट्स है, चिया सीड्स हैं, आप ले सकते हैं, आलमंड ले सकते हैं, यू नो। एंड नंबर 4, चूज चीज, यू वांट चीज, पीनट बटर और फ्रूट, राइट। इन तीनों में से आप चूज करें। एंड नंबर 5, चाय। चाय के बगैर तो हम सुबह उठ नहीं सकते, राइट। सो ये 5 चीजें हैं
इसको हम बिग 5 बोलते हैं। यू कैन ऐड डेली ब्रेकफास्ट, आप इन 5 चीज़ों के अंदर रहते हुए डेली ब्रेकफास्ट करें, आपका वेट भी कम होगा, यू विल फील हेल्दी, आपकी क्रेविंग्स भी लंच और डिनर के टाइम नहीं होगी, आप एक्टिव फील करेंगे और आपको इसका प्रॉपर रिजल्ट भी विद इन अ वीक के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। आपका हेडेक जो माइग्रेन है वो भी खत्म हो जाएगा। Wow, that's a really good tip. You guys remember the big five. अच्छा जी, ये जो stubborn fat है, stubborn fat कैसे जाता है? जो अक्सर अच्छा, like तब हमारा जो स्टबन बेसिक जो स्टबन फैट है उसके अंदर हमारे टमी एरिया आ जाता है, उसके अंदर हमारे शोल्डर की बैक फैट जिसको बोलते हैं ऑब्लिक्स, लव हैंडल्स आपने देखे होंगे बहुत ज्यादा, फिर आर्म्स हैं, कुछ फीमेल्स के आर्म बहुत हैवी होते हैं, फिर थाइज हैं। अब ये फैट जो है ना, इसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। ये बेसिकली इंडिकेटर है फीमेल के अंदर, अगर आपका फैट स्टोर है अब नॉर्मल एरिया में, तो इसका मतलब है कि आपको हार्मोनल इश्यूज हैं, आपकी बॉडी हार्मोनली डिस्टर्ब है। तो उसमें आपने डाइट के अंदर सबसे हेल्दी फैट इनटेक सबसे पहले बढ़ाना है। व्हेन इससे हेल्दी फैट, उसके अंदर जिसमें हमारे पास व्हाइट शुगर आप अवॉइड करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब ऐड अप करते हैं, जिसके अंदर स्वीट पोटैटो है, पास्ता है, होल ग्रेन ब्रेड है, सॉरी, उसी तरह आप अपनी फैट इनटेक बढ़ाते हो। ओमेगा 3 हैं, आप अपने फिश ऑयल्स ले सकते हो, फिर वॉलनट्स है जैसे ओमेगा 3, वॉलनट, चिया सीड और इनके अंदर होती है। फिर आप अपनी डाइट के अंदर देसी घी का इस्तेमाल ज्यादा करें, फिर अपनी डाइट के अंदर नट्स का इस्तेमाल ज्यादा करें, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा करें। इसकी वजह यह है कि आपको हेल्दी फैट इनटेक चाहिए। फैट इनटेक क्या करता है, जो हेल्दी फैट्स होता है वो आपकी प्रोडक्शन करता है हार्मोन्स की, राइट। वो प्रोडक्शन करता है हार्मोन्स की, जो कि आपकी बॉडी में रेगुलेट करने के लिए हेल्प करते हैं हार्मोन को, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस होता है। नंबर टू, आपका जो कैलोरी का इंटेक है, लेट सपोज आप मील्स के साथ राइस, रोटी, पास्ता, बर्गर अगर खा रहे हो, तो वो बहुत बड़े मील्स जा रहे हैं। जो आपकी बॉडी जो है वो मील्स के साथ एक्स्ट्रा जो कार्ब्स आ रहे हैं उनको प्रोसेस नहीं कर पा रही, उनको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, और इंसुलिन सेंसिटिविटी हो चुकी हुई है और वो उसको स्टोर कर लेती है एज ए फैट। तो आप अपने मील्स को स्मॉलर पोर्शन में जाएं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि कार्ब्स को आपने 50% अपने कम कर दें। तो आपका वो जो स्टबन फैट है, यस, उसके साथ साथ अपने डॉक्टर को एक बार विजिट करें, हार्मोन बैलेंस के लिए उसकी टेस्ट कराएं, ताकि आपको पता चल जाए कि यस, ये क्लिनिकली डायग्नोज है, प्रॉब्लम है, और उससे आपको प्रॉपर हेल्प मिलेगी विजिट करने के बाद। okay, perfect. So let's just ask one more question because अभी भी बहुत ज़्यादा सवाल है, but we always have more questions than we can answer. Acha ji, what do you think about following the way of the Prophet Muhammad, which is Sunnah, कि Monday और Thursday बंदा fast करे और portion diet करे और फजर के बाद walk करे? अच्छा, जो सबसे प्यारी सुन्नत जो कि हम क्लाइंट के साथ फॉलो कराते हैं, और ये मैं सिर्फ आपको टिप दे रहा हूँ, ये $1,000,000 टिप है, ऑनेस्टली बताऊं। वैसे हमारी क्लाइंट्स ने, लोगों ने आप लोग सब भेज दें मुदस्सिर को, इन्होंने आपको $1,000,000 दीजिए। हमारी एक क्लाइंट ने, बहुत अच्छी क्लाइंट थी, उन्होंने 9 मंथ के अंदर, ये मैं एग्जैजरेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी वन ऑफ दोज फास्टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन थी। मैं आप सबको ये नहीं कह सकता कि आप सब उससे इंस्पायर हों और वही करें, क्योंकि उस बंदी ने बहुत मेहनत की, बहुत डेडिकेशन की। उसने 9 मंथ के अंदर ऑलमोस्ट 50 kg कम किया। कितना? 50 kg इन 9 मंथ्स। 50? यस, शी उसने क्या वाज लाइक, वो एक बंदी निकल गई उसी से, और माशाल्लाह शी नहीं, इज बट वो जो लाइक। है 50 kg वाली, उसने, वो आपकी पर्सनल क्लाइंट थी कि वो आपको फॉलो करती थी ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब? नहीं, वो हमारी ऑनलाइन क्लाइंट थी, जिसने हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ था। ठीक है, हमारे जो मेनली क्लाइंट्स होते हैं वो हमारे ऑनलाइन क्लाइंट्स होते हैं। तो उसमें से मैं ऑनलाइन में कहता हूँ कि क्या होता है, लाइक ऑनलाइन में आप उनको डाइट प्लान्स देते हैं? उनको एक कोच मिलती है, एक पूरे साल के लिए एक कोच, पर्सनली डेडिकेटेड कोच मिलती है, जो कि उनके डेली बेसिस पे फॉलो अप रहती है, हैबिट्स एड अप करती है। जैसे लेट्स सपोज हमने एक ब्रेकफास्ट आपको बताया, राइट, कि बिग 5 लेना, ठीक है, ये दैट इज वन हैबिट बिल्ड। ये एक हैबिट है जो कि कंसिस्ट करती है बहुत ज्यादा टास्क के ऊपर, प्रैक्टिसेस के ऊपर। सो इस तरह की डिफरेंट हैबिट्स हैं जो कि हम पूरे क्लाइंट को एक साल के ऊपर लेके चलते हैं। वो जैसे एडअप करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनका वेट भी कम होता है, उनकी हेल्थ भी इंप्रूव होती है। तो अब जरमीना विजन है, माशाल्लाह जितने मेरे लोग फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं, पुराने क्लाइंट्स। जरमीना ने, शी इज अ डॉक्टर, और वो डॉक्टर है, उसका हस्बैंड भी डॉक्टर थे।
और वो उसने मैं 1 साल के ऊपर चले बता साल में ऑलमोस्ट 50 केजी कम किया। जो बेसिक 4 से 5 हैबिट्स उसने जो हम क्लाइंट्स को उसको फॉलो कर रहे हैं। एक नंबर 1 द बिग 5 ब्रेकफास्ट वो डेली करती थी। नंबर 2 वो एक्सरसाइज या वॉक 1 घंटा डेली करती है। उसके रूम में कारपेट पे निशान पड़ गए हुए थे, डेडिकेशन आपने चेक की, कारपेट पे निशान पड़ गए हुए थे डेली वॉक करके। एंड नंबर 3 जो कि हमारी सुनना है, जिससे मैं आप बात से बता रहा था कि स्लो खाना, आहिस्ता खाना, स्लो ईटिंग, जिसने हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आहिस्ता खाओ, चबा के खाओ, ठीक है। ये अगर आप सिर्फ ये टिप एडअप कर लेंगे अपनी डेली डाइट में, वो सब लोग जो कि ओबीस हैं, जो कि बहुत तेजी से खाना खाते हैं, जो कि बिंज ईटिंग करते हैं और वेट लॉस करना चाहते हैं, लिटरली इफ यू जस्ट ऐड 2 to 3 स्ट्रेटजीज, आपको मुदस्सिर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी जिंदगी किसी न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन Wow. अगर आप फॉलो कर लेते हो। Wow. 50 स्लो खाएं, kg you guys, 3 चीजें करें 50 kg, पर उसने चीनी भी खत्म कर दी होगी और भी तो चीजें की होंगी। वो हेल्दी भी करती है, लेकिन उसने जो मेन दे आर मैक्रो हैबिट, जिसको हम मैक्रो हैबिट्स बोलते हैं, जिसपे आपकी फाउंडेशन खड़ी होती है। अगर आपकी फाउंडेशन ठीक होगी, सब लेके आप मेरे पास आएंगे, आई टेक द मनी और मैं यही चीजें बताऊं। अगर मैं वही चीजें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि सुन रहे हैं, मलिहा इज वन, मलिहा भी नीचे कमेंट्स इसने किया हुआ था कि उनको मुझसे कंप्लेन करते हैं कि मुझसे तुम हमसे चार्ज भी करते हो और सब कुछ फ्री भी बता देते हो, ये तो बहुत गलत बात है। तो अगेन, आप ये जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं इनको बता रहा हूँ, अब जब मेरे पास आएंगे तो मैं यही इन चीजों को एक्सप्लेन करके यही बताऊंगा। सो व्हाई नॉट टू फॉलो देम दीज बेसिक थिंग्स, और लिटरली आपका 5-6 मंथ के अंदर आपका वेट भी कम होगा, आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी और लोग आपसे पूछेंगे कि आपने किया क्या। Wow. You guys, we want to see everybody losing weight and becoming fit by following Mudassir Ali's 3 tips for healthy eating. And इन्होंने आपको example भी दिया of a girl who lost 50 kg. Wow. So thank you so much, 100। Mudassir. It was great to have you, and we will call you back soon. And we वेलकम वेलकम कि वेलकम, हमने थैंक आपकी यू। कौन सी टिप्स फॉलो की हैं, कौन सी नहीं, and very very good tips and very easy to follow tips. So that is great. अच्छा अच्छा, मुझे एक लास्ट पे क्वेश्चन है कि व्हाई दिस स्केरी अम्मी, लाइक मुझे बहुत एक माइंड में चल रहा है मेरे ना, वो क्वेश्चन नहीं मुझे कि स्केरी अम्मी का कॉन्सेप्ट कहाँ से Desi आया। Ammi बना था. I wanted to make a platform which was the voice of all Desi Ammis. Because अगर आप ओके, मदरिंग की फील्ड में देखें, तो मदरिंग की फील्ड में जो देसी अम्मी है, जो पाकिस्तानी माँ है, उसकी कोई आवाज नहीं है। बिकॉज जब हम मदरिंग की बात करते हैं, बहुत गोरे तरीके से बात करते हैं, हेलीकॉप्टर मॉम्स, टाइगर मॉम्स, सॉकर मॉम्स, परमिसिव पेरेंटिंग, अटैचमेंट पेरेंटिंग, दीज आर ऑल गोरा टर्म्स। पाकिस्तान में जो हमारा मदरहुड का तरीका है, या इंडिया में जो ममता का तरीका है, इसकी आवाज इजंट रियली मतलब देयर एट ऑल। लाइक पाकिस्तान में हमारा एक तरीका है, हमारी नानियों ने चप्पलें भी उठाई हुई हैं, उन्होंने हमें गालियां भी पड़ी हुई हैं अपने ग्रैंडफादर से। लाइक वो उनके प्यार का तरीका है। इसको आप वेस्टर्न में देखो तो वो कहेंगे, oh my god, this is abuse, but it's not abuse, this is the way our parents are, like the way my mom is, for example, like अगर एक गोरा कॉन्स्ट्रक्ट होगा तो आप अपनी वहां पर तो यू इवन कॉल योर मदर बाय हर नेम, लाइक आई वुड से शैला, बट यहाँ पर वो तरीका नहीं है। यहाँ पर कुछ भी हो जाए तो वी हैव अ डिफरेंस, जैसे हम बात करते हैं। यहाँ पर लड़के बूढ़े भी हो जाएं, दादे भी बन जाए, अपने माँ बाप के साथ ही रहते हैं। हमारा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हमारा एक अपना निजाम है, इसकी कोई जगह नहीं थी दुनिया में। सो आई वांटेड टू मेक अ प्लेटफॉर्म जो इंशाल्लाह लाइक विच इज ग्लोबल, इट ऑलरेडी इज ग्लोबल, बट लाइक इतना बड़ा हो जाएगा कि हम दुनिया को दिखा देंगे कि पाकिस्तानी माएं किस तरह अपनी मदरिंग करती हैं। तो जब मैं नाम सोच रही थी तो मुझे था कि एक ऐसा नाम हो जो हमें रिप्रेजेंट करे। तो हम लोगों का एक जो लाइक हमारा जो मदरहुड का तरीका है ना, उसमें ये डराना भी आता है। लाइक हम बच्चों को, अच्छी बात है बुरी बात है, एक लहदा बात है, पर हम बहुत डराते हैं कि ये नहीं करोगे तो जन्नत नहीं मिलेगी, ये नहीं करोगे तो दोज़ख में जाओगे, ये नहीं करोगे तो अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे। और पिछले जमाने में तो आप लाइक जिन बाबा से भी, या जो बहुत मेड्स हैं वो भी कहती हैं। सो इसलिए हमारी टैगलाइन है कि समटाइम्स वी स्केयर देम, बट ऑफन टाइम्स हमारे बच्चे हमें डराते हैं अब अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से। सो स्केरी अम्मी, लाइक इसका ये मतलब है। एंड आई थिंक जब हम सब बड़े हुए हैं तो हम सब अपने माँ बाप से डरते हुए बड़े हुए हैं। लाइक मुझे ऑब्वियसली एज यू ग्रो अप आपको डर नहीं लगता। एंड आजकल के बच्चे डिफरेंट हैं, वो मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे मुझसे डरते हैं, लेकिन मैं अपनी नानों से बहुत डरती थी।
मैं आई थिंक अपने अब्बू से भी लाइक आई वाज केयरफुल लाइक हम we have a different way of parenting जिसमें रिस्पेक्ट का बहुत एलिमेंट है. So hence Yes. scary and we are also scary because हमारे बच्चों के वो कुछ like मतलब हमारे हमें मुझे होता है कि जो पाकिस्तान की माएँ हैं ना वो like जैसे वो नहीं होती शेरनी खड़ी हो जाती है अपने बच्चों के सामने हम उतनी जुनूनी हाँ. like, कोई बच्चों के पास आकर तो देखे मतलब वो आगे तो देख. सारी औरतें चार दीवारी में चुप रहती है ना बच्चों के मामले में कोई नहीं चुप रहता like we like tigresses. नहीं नहीं, नो डाउट, इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, आई रियली लाइक द नेम. और अगेन मेरे दिमाग के अंदर वो थी कि ये स्केरी अम्मी जब से मुझे पता चला मैंने कहा यार ये क्या कॉन्सेप्ट है, बट ऑब्वियसली इसके पीछे जो साइंस है, जो फिलोसफी है, रियली लाइक हमारी देसी अम्माएं. और आई सल्यूट टू अवर देसी अम्माएं जो कि स्पेशली मदर्स हैं, मेरी मदर, जितनी सब लोगों की मदर जिन्होंने इतनी अपने आप को पीछे रखा और अपने बच्चों को, हमारी हेल्थ को आगे रखा, हमारे खाने को आगे रखा, अपने इन-लॉज को, अपने हस्बैंड को और अपने फैमिली के लोगों को. देयर आर टन्स ऑफ फीमेल जो मेरे पास आती हैं काउंसलिंग के लिए. तो आई रियली रियली गिव देम अप्रिशिएट और सैल्यूट करना चाहूंगा कि वो बहुत ज्यादा काम कर रही होती हैं, मेंटली इमोशनली सेक्रीफाइस कर रही होती हैं और इन्वेस्ट कर रही होती हैं हमारे ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर. और सेक्रीफाइस वो जो 20 30 40 साल का होता है और हम उनको पे बैक हमें करना चाहिए और हमें पे बैक जरूर करना चाहिए. और यस, उनको एट द एंड के वो सारी मदर्स को जो कि सो कॉल्ड मतलब स्केरी भी हैं, देसी भी है, हमारी जो मदर्स हैं, उनको अपनी हेल्थ को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए और रखना भी चाहिए. इफ यू आर अ मदर, मेक श्योर एक चीज याद रखें, पुट योर सेल्फ फर्स्ट. अब हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आगे हम लोग बहुत ज्यादा खवातीन आती है, सर मैं अपनी मेरी मैं मीन तो नहीं हो रही अगर मैं अपने आप को फर्स्ट रख रही हूँ. एक मदर की एक ना एक आइडेंटिटी है, वो कहती है यार शायद मैं अपने आप को मीन कर रही हूँ अगर मैं पहले सोचूंगी बच्चों के कि मैं डाइट के बारे में सोचूंगी, हेल्थ के बारे में. लेकिन मेरा उनसे एक डिफरेंट परसेप्शन है, मैं इनको देता हूँ कि आप बच्चों को जब अपना ख्याल पहले रखेंगी तो अपने बुढ़ापे में बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं होगी. तो आप उनका बेहतर ख्याल रखते हैं, अपने पोतों को एंजॉय कर सकती हैं, अपने पोतों को, उनकी हेल्थ को, उनकी शादियां. अदरवाइज ये होता है कि हम हमारी इतनी भी मदर है 40s 50s में जाकर हॉस्पिटल में उनकी लिस्ट बन रही होती है, सर्जरीज हो रही होती हैं, मेडिकेशन चल रही होती हैं, डॉक्टर के विजिट लग रहे होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं. तो यू नीड टू केयर योरसेल्फ फर्स्ट. सो दिस इज माय लाइक हम्बल रिक्वेस्ट. No, we completely agree. And thank you so much, Mudassir. We will have you back. वेलकम. So our scary श्योर ummis श्योर. can also become strong ummis. And that's one of the things इंशाल्लाह. we want them to do. Thank you. डन. टेक केयर, टेक केयर.